Hello friends, welcome to the medical microbiology and immunology class. Today we will discuss about the second pathogen, namely Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus classify into domain bacteria. Phylum is Firmicutes, class is Bacilli, order Bacillus, family Staphylococci, genus Staphylococcus, and species is aureus. If we see the morphological characteristics of Staphylococcus aureus, it is gram-positive bacteria, cocci shape. Size of this bacteria is 1 micrometer in diameter. It is arranged in a grape-like cluster. It is non-motile bacteria. They are non-spore forming, like the other members of class Bacilli. They are produce a pores in unfavorable condition, but Staphylococcus aureus does not produce any type of the spore. If there is an unfavorable condition, in that condition they will not survive in that particular condition. They have a thick cell wall with multi-layers of peptidoglycan. Here is the difference between the gram-positive and the gram-negative bacteria. When we are studied about the E. coli, which is the gram-negative bacteria, in that E. coli cell wall, we study that E. coli it's only have a 1 to 2 layers of peptidoglycan, because the gram-negative bacteria it's have a large number of lipids and less number of peptidoglycan. So in gram positive bacteria, they have a thick cell wall which is made up from the peptidoglycan. They have the large number of peptidoglycan and less number of lipids. They are facultative anaerobes. That means in absence of oxygen, they can grow. Basically, Staphylococcus aureus is an aerobic organism, but if there is a less amount of oxygen or no oxygen, in that condition they will be survive. Growth occurs over a wide range of temperature from 10 to 45 degrees centigrade. From 10 to 45 degree centigrade. So it is a wide range of temperature on which organism can grow. But the maximum growth of this organism is observed at the 37 degrees centigrade. Therefore, their optimum temperature on which they can maximally grow it is 37. So here is the image. Like in third point, we discuss about that it is arranged in grape-like clusters. You can see that uh, here they are present in a grape-like clusters. They are not present in single. Only some of the organism they are present in single, because during the staining process they will be separate from the cluster. But maximum time they are present in a cluster. It is gram positive, therefore they are appear in a violet in color, and you can easily see that they are the cocci shaped bacteria which has a multi layers of peptidoglycan in their cell wall. Okay. Cultural characteristics. Staphylococci grow readily on most bacteriological media under the aerobic और micro aerophilic conditions. जैसे कि हमने पिछले पॉइंट के अंदर देखा कि जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस है ये फैकल्टेटिव एनारोब्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर कभी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर ऑक्सीजन ना के बराबर है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, और इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब कहते हैं, ठीक है। अगर हम सॉलिड मीडिया पे उसकी कॉलोनीज के बारे में बात करें, सो दे आर अपियर इन राउंड स्मूथ कॉलोनीज, raised or you can say the convex colonies and the glistening. They are Staphylococcus aureus usually forms grey to deep golden yellow colonies. If we grow Staphylococcus aureus onto a nutrient agar, so on nutrient agar they shows a golden color colonies. On mannitol salt agar, the colonies appears as circular, 2 to 3 millimeter in diameter, with a smooth and the shiny surface, and colony appears opaque. Opaque means there is a no light transform transfer from the one side of the colony to the another side of the colony, and are often pigmented and the golden yellow. ओपैक का मतलब ये होता है कि अगर आप प्लेट को पेट्री प्लेट को जिसमें
स्टेफिलोकोकस की ग्रोथ हुई है उसको अगर लाइट के प्रेजेंस में पकड़ते हैं तो कॉलोनी की एक साइड से अगर आप लाइट पास करते तो वो दूसरे साइड में नहीं आ पाएगी, वो होता है ओपैक। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट, कि कॉलोनी में से लाइट पूरी तरीके से पास हो रही है, ठीक है। देन ऑन टू ट्रिप्टिक सोया अगर, they shows the circular and the convex cornice and shows the entire margin. Onto a blood agar, they shows the beta hemolysis. If you grow this bacteria onto a blood agar, so they cause lysis of RBC, and because of that there is a formation of one zone which is known as the hemolysis zone. So therefore onto a blood agar, they forms a beta hemolysis zone. Here you can see the cultural characteristics onto a different agar medium. Here you can see the onto a mannitol salt agar. They shows the circular colony, glistening colonies. Then here onto tryptic soy agar, you can see the some golden yellow color colonies. And this is the blood agar. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉलोनी के सराउंडिंग के अंदर एक क्लियर जोन बना हुआ है। अगर आप नॉर्मल ब्लड अगर का कलर देखेंगे तो ऐसा इस तरीके से रेड होता है, लेकिन जहां पर स्टेफिलोकोकस ऑरिस की ग्रोथ होती है तो वो एक हिमोलाइसिन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन है, ठीक है, बीटा हिमोलाइसिन, जो कि क्या करता है यहाँ पर इस एरिया के अंदर जितनी भी आरबीसीज होंगी उन्हें वो ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से जो रेड कलर होगा अगार का एक्चुअल में वो नहीं रह पाएगा और उसकी वजह से वहां पर एक क्लियर जोन बन जाएगा जिसे कि हम बीटा हिमोलिसिस जोन कहते हैं, ठीक है। देन द बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसका करते हैं तो अलग अलग टेस्ट है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस है या नहीं है। जैसे कि कैटालिस टेस्ट है, ठीक है। कैटालिस टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से बचने के लिए कैटालिस एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे पेरोक्सिडेज भी कहा जाता है। तो अगर बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उस बैक्टीरिया को लेके अगर H2O2 के सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम डिप करते हैं तो वहां पर वो क्या करता है, बबल्स फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, उसको ब्रेक करता है H2O2 को, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर बबल का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेज टेस्ट भी उसकी नेगेटिव है। OF फर्मेंटेटिव टेस्ट है, ठीक है, वो उसकी पॉजिटिव आती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो, इन प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो। कोएगुलेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो आरबीसीज को कोएगुलेट कर देता है, एक जगह पर क्लम्प्ड कर देता है। इंडोल टेस्ट के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि इंडोल टेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ये ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो ट्रिप्टोन ब्रॉथ के अंदर जब हम उसे ग्रो करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को, तो अगर वो ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है तो वो ट्रिप्टोफेन को इंडोल के अंदर कन्वर्ट करेगा और इंडोल कोवैक्स रिएजेंट के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके एक पिंक कलर की रिंग बनाएगा। अगर ऐसा आता है तो वो टेस्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ऐसी पिंक कलर की रिंग नहीं आती है तो फिर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उस तरीके से स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये क्या है, इंडोल नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ये इंडोल टेस्ट को नेगेटिव है। गैस नेगेटिव है, जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम भी हमने बात की थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, एसिड और गैस प्रोड्यूस करता है। ये एसिड तो प्रोड्यूस करता है लेकिन ये गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। मिथिल रेड टेस्ट ये पॉजिटिव है, ठीक है। मिथिल रेड जो है ये एसिडिक कंडीशन के अंदर रेड कलर का होता है। तो अगर कोई एसिड बैक्टीरिया कोई एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एसिड मिथिल रेड के साथ में रिएक्ट होकर वो रेड कलर ही रहेगा, लेकिन अगर बेस प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, येलो कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वोगस प्रोस्का टेस्ट इसकी पॉजिटिव है। जिलेटिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट भी इसकी पॉजिटिव आती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि जिन्हें जिलेटिन अगार पर अगर ग्रो किया जाता है तो वो जिलेटिन को हाइड्रोलाइज करते हैं। जिलेटिन एक पॉलीमर है, तो फिर वो पॉलीमर को क्या करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर या डाइसैकेराइड्स के अंदर उसको ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि वहां पर एक क्लियर जोन दिखना शुरू हो जाएगा जिलेटिन अगार के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, जिलेटिन को हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो वो टेस्ट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। बीटा हिमोलिसिस टेस्ट है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अभी अभी कि ये क्या करता है, ब्लड अगर पर अगर इसको ग्रो किया जाता है तो आरबीसी को लाइज कर देता है, इसकी वजह से कॉलोनी के सराउंडिंग के अंदर एक क्लियर जोन बन जाता है। तो ऐसा अगर बनता है तो उसे हम बीटा हिमोलिसिस जोन कहते हैं।
सिट्रेट टेस्ट ये पॉजिटिव है, मोटिलिटी इसकी नेगेटिव है, ये कोकाई शेप बैक्टीरिया होने की वजह से इनके पास फ्लैजेला नहीं है और उसकी वजह से ये मोटिलिटी को शो नहीं करते हैं। अगर टेलुराइड कंटेनिंग मीडियम के अंदर हम स्टाफिलोकोकस ऑरियस को ग्रो करते हैं तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर की कॉलोनीज क्या करता है, शो करता है। तो इतने सारी टेस्ट करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ये स्टाफिलोकोकस ऑरियस के लिए किए जाने वाली बायोकेमिकल टेस्ट है, ठीक है। और भी है, दूसरी भी टेस्ट की जाती है जिसे बर्जेस मैनुअल के अंदर अच्छे से दिया हुआ है। देन द पैथोजेनिसिटी, the organism produces the two type of the diseases, one is the infection and another one is the intoxication. Now what is infection? Infection is when the organism gain access to damaged skin, mucosal or tissue sites and colonize by adhering to cell or extracellular matrix evade the host defense mechanism and multiply in the host body and cause a tissue damages. Okay, इन्फेक्शन क्या होता है कि किसी तरीके से ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस गेन करता है, और अगर वो एक्सेस गेन करे तो फिर वो थ्रू द स्किन हो सकता है या नसल पैसेज हो सकता है या अलग अलग कट साइड से हो सकता है। यानी कि किसी जगह पर अगर सपोज आपको कट लगा हो, वाउंड हुआ हो, तो उस जगह से भी वो एंटर कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग साइड से वो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस गेन करता है और फिर वो एक्सेस गेन करने के बाद क्या क्या करता है, तो वो स्किन को डैमेज करता है, वो म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज करता है, कुछ टिश्यू साइट्स को भी डैमेज करता है, और वो डैमेज साइट पे वो कॉलोनाइज होना शुरू हो जाता है, तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से होता है वो क्या करता है, हमारी सेल्स को पकड़ के रखता है, अधेर करके रखता है। या तो सेल को अधेर करके रखेगा या फिर हमारी जो सेल्स है उन्हें सराउंडिंग में एक ईसीएम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कि प्रोटीन्स और अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ होता है। तो उससे वो क्या करते हैं, उससे अधेर करते हैं, या तो सेल डायरेक्ट सेल को पकड़ेंगे या सेल के सराउंडिंग के अंदर जो ईसीएम होगा उसे पकड़कर बैठ जाएंगे, और फिर वो धीरे धीरे हमारी या फिर होस्ट की इम्यून सिस्टम को या होस्ट मैकेनिज्म को इवैड करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे और टिश्यू डैमेज भी करते रहेंगे। दूसरा होता है इंटॉक्सिकेशन। दे प्रोड्यूस द टॉक्सिन वेदर इन इन्फेक्टेड होस्ट और परफॉर्म इन विट्रो। A number of staphylococcal factors have been isolated associated with the cell or extracellular which may influence the virulence. स्टाफिलोकोकस ऑरियस जो है ये अलग अलग तरीके के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वैसे तो बैक्टीरिया दो तरीके के टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, एक एंडोटॉक्सिन होता है, दूसरा एक्सोटॉक्सिन होता है, ठीक है। तो वो इन्फेक्टेड होस्ट के अंदर या फिर आप इन विट्रो लैबोरेटरी के अंदर भी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तब भी वो क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टाफिलोकोकस ऑरियस जो है ये नंबर ऑफ विरुलेंस फैक्टर प्रोड्यूस करता है, जिसमें से कुछ की अगर हम बात करें विरुलेंस फैक्टर्स की, तो जैसे कि सेल एसोसिएटेड पॉलीमर्स है, या फिर उसके सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो भी विरुलेंस फैक्टर की तरह काम करते हैं, या फिर वो क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम मतलब जो बैक्टीरिया की सेल के बाहर डालता हो बैक्टीरिया, तो उन्हें हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। तो उसमें कोएगुलेज हो जो कि आरबीसी के कोएगुलेशन के या क्लम्पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर लाइपेजेस है जो कि लिपिड को ब्रेक करता है। हम जानते हैं कि एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं होती है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि लिपिड से बना होता है। तो अगर ये लाइपेज प्रोड्यूस करता है तो ये क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स है उनको ब्रेक करते जाएगा। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं रह पाएगी तो सेल स्टेबल नहीं रहेगी, सेल स्टेबल नहीं रहेगी तो सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, टिश्यूज को डैमेज करता है। या फिर वो और एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और फिर न्यूक्लिक एसिड वो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है, तो उनको वो क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। देन वो कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोटीन रिसेप्टर्स भी उसके इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देन they produce another toxins like cytotoxins. If you see the cytotoxins, so they are the membrane active substances consisting of 4 hemolysin and the leukocidin. ये एक मेम्ब्रेन एक्टिव सब्सटेंसेस है जो मेम्ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, और ये 4 तरीके के हीमोलाइसिन्स को प्रोड्यूस करता है और एक ल्यूकोसिडिन को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन these are the 4 hemolysins. First one is the alpha hemolysin. Is a protein with a molecular weight of 33 kilodalton. It has a lethal effect on a wide variety of cell types and lies the erythrocyte of several animal species. ये 33 किलोडाल्टन का प्रोटीन है, ये एक लीदल है, मतलब ये डेथ भी कॉज कर सकता है, ये टॉक्सिक है, ठीक है। ये क्या करता है,
अलग अलग एनिमल्स के अंदर एरिथ्रोसाइट को मतलब आरबीसी को लाइज करता है। अब आरबीसी अगर बॉडी के एनिमल की बॉडी के अंदर नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन ट्रांसफर का काम कौन करेगा, या न्यूट्रिएंट बाकी जो ट्रांसफर है या बाकी जो आरबीसी से रिलेटेड फंक्शन है तो वो कौन करेगा। ऐसे में अगर वो फंक्शन नहीं होंगे तो इट में पॉसिबल कि वो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। दूसरा बीटा हेमोलाइसिन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एक स्पिंगोमाइलिनेज है। हमारी मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो एक लिपिड है विच इज कॉल्ड स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर इसकी अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है। तो बीटा इमोलाइसिन क्या करता है, डायरेक्टली ये स्पिंगोमाइलिन पे अटैक करता है बाय प्रोड्यूसिंग अ स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम। और अगर ये डायरेक्टली स्पिंगोमाइलिन पे अटैक करेगा तो आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि स्पिंगोमाइलिन की अमाउंट ज्यादा होती है, तो ऐसा होने पर स्पिंगोमाइलिन ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन क्या नहीं रह पाएगी, मेंटेन नहीं रह पाएगी, वो स्टेडी नहीं रह पाएगी, और अगर वो स्टेडी नहीं रह पाएगी तो आरबीसी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और इसी की वजह से ये ज्यादातर क्या करता है, डैमेज प्रोड्यूस करता है। इट इज ऑन द प्रोटीन विद अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 35 किलोडाल्टन। ये 35 किलोडाल्टन का प्रोटीन है। ये हॉट कोल्ड हिमोलाइसिन है, मतलब इट्स हिमोलाइटिक प्रॉपर्टीज आर इंक्रीज बाय एक्सपोजर ऑफ द आरबीसी टू कोल्ड टेम्परेचर। अगर बीटा इमोलिसिन को आप क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर को एक्सपोज करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, आरबीसी को ब्रेक करता है, ठीक है। Then delta hemolysin is a protein with a molecular weight of 8 kilodalton and it acts as a primary surfactant. ये primarily surfactant की तरह काम करता है। Gamma hemolysin actually consists of 3 proteins and the 3 delta hemolysins proteins interact with one of the 2 PV leukocidin proteins. These are the 4 different you can say that hemolysis which is produced by the Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus cause a different diseases, like it causes diseases of skin and soft tissues, folliculitis which is the inflammation of follicles. Whenever you see the itis, here you can see that the folliculitis, itis, itis. So this generally used for representing a inflammation. Okay, so here is like folliculitis, that means inflammation of follicles. Then furuncle, abscess, yeah, wound infection. They also cause a musculoskeletal diseases like osteomyelitis. So here is again itis. Okay, so here is the inflammation of osteocyte. They produce osteocytes is the cells of bone. So it causes inflammation of bone. It also responsible for the arthritis. Again, here is a bone. Okay, inflammation of joints. Then bursitis. It is inflammation of bursa. Okay, then it also causes the respiratory tract infection, tonsillitis, inflammation of tonsils, pharyngitis, inflammation of pharynx, sinusitis is the inflammation of sinuses which is present in our facial muscles. दो हमारे टोटल 4 साइनसेस होते हैं, दो हमारे आंखों के ऊपर होते हैं और दो जो है ये नोज के साइड में होते हैं, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो सबसे पहले ये नसल पैसेज से पास होके साइनसेस के अंदर एयर जाती है और फिर वो कहाँ एंटर करती है, हमारे फेरिंग्स और लैरिंग्स के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आपने एयर को इनहेल किया और वो सीधा नोज से होते हुए फेरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर एंटर कर जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले नसल पैसेज से एंटर होके वो साइनसेस के अंदर जाएगी, फिर साइनसेस से निकलकर वो कहाँ पर जाएगी, बाकी के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये साइनसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन अगर होता है जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है नसल पैसेज के अंदर, तो वो क्या करता है, अगर ये साइनसस कैविटीज है बेसिकली, ठीक है, तो ये कैविटीज मतलब एक खड्डा है जहां पर फिर वो क्या होता है, एयर आराम से पास हो सकती है, घूमकर फिर वो अंदर जा सकती है। लेकिन जब सर्दी होती है या खांसी होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो होता क्या है कि हमारे ये कैविटीज जो है, चारों की चारों कैविटीज, ये क्या हो जाती है, म्यूकस से फील्ड हो जाती है। जब ये म्यूकस से फील्ड हो जाती है तो फिर एयर वहां से पास नहीं हो पाती है। अगर यहाँ एयर वहां से पास नहीं होगी तो वो फिर अंदर भी नहीं जा पाएगी और इसीलिए सर्दी के अंदर सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। साइनसाइटिस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली इन्फ्लामेशन, साइनसेस का इन्फ्लामेशन अगर हो गया तो साइनस ब्लॉक हो जाते हैं और सेम कंडीशन होगी म्यूकस जैसी। वहां पर म्यूकस ने ब्लॉक किया था, यहाँ पर साइनस अब इन्फ्लामेट हो गए
तो इन्फ्लामेट होने की वजह से पैसेज ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से एयर अंदर नहीं जा पाएगी और जिसकी वजह से सांस लेने में क्या होती है, लोगों को तकलीफ होती है। आगे जाकर अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है तो फिर ये अस्थमा में भी तब्दील हो सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंको निमोनिया। It also causes the central nervous system diseases like abscesses, meningitis, infection of meninges. Okay, there are the three different kind of meninges. They are present in our central nervous system. These are the pyometer, durameter, and one three different kind of the meninges. They are present in our central nervous system. One is the pyometer, another one is the durameter, and third one is the arachnoid matter. Okay, so like this, these are the three covering which is present in our brain, which protect from the shock protect from the mechanical shocks. Okay, तो इसमें क्या होता है कि ये meninges के inflammation हो जाता है. Then they also call the endovascular diseases like bacteremia. They are presence of bacteria into a blood. Septicemia, that presence of bacteria in bloodstream and they cause sepsis. Pyemia, presence of bacteria into a pus samples. Okay, then they also cause a urinary tract infection. Okay, then they also cause a toxic shock syndrome. So now how to diagnose this kind of the infection? ठीक है, तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस आप इसका कैसा करेंगे? तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए आप इसका अलग अलग जगह से स्पेसिमेन सैंपल ले सकते हैं। फिर स्पेसिमेन लेने के बाद आप उसका माइक्रोस्कोपिक या कल्चरल क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें स्पेसिमेन आप कहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल के अंदर। तो स्पेसिमेन आप पर्स से ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, फिसिस ले सकते हैं, यूरिन ले सकते हैं। लेकिन कब कौन सा सैंपल लेना है ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसी है। अगर स्पिरिटी लेजन है या ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो फिर ऐसे में फर्स्ट सैंपल लिया जाएगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो स्पूटम सैंपल लिया जाएगा। बैक्टीरियमिया है तो फिर ब्लड सैंपल लिया जाएगा। फूड पॉइजनिंग है तो फिसेस को लिया जाएगा। और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसके लिए फिर यूरिन सैंपल लिया जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि जिस तरीके की कंडीशन होगी उस तरीके से आपका स्पेसिमेन भी बदलेगा। ठीक है, देन एक बार आपको स्पेसिमेन मिल जाए तो आप सबसे पहले उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। अगर आपको डाउट है कि ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस है तो आप उसकी ग्राम स्टेनिंग करिए। ग्राम स्टेनिंग करने के बाद अगर आपको क्लस्टर्स में बैक्टीरिया अरेंज दिख रहे हैं, वॉयलेट कलर का है, कोकाई कलर का है, तो इससे एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि हो ना हो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। अब वो कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप कल्चरल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए आप बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, जो अभी अभी हमने देखा कि आप कैटलिस्ट टेस्ट कर सकते हैं, आप ऑक्सीडेज टेस्ट कर सकते हैं, आप ओए फर्मेंटेटिव टेस्ट कर सकते हैं, इंडोल टेस्ट कर सकते हैं, मिथिल रेड कर सकते हैं, ओगस प्रोक्सल कर सकते हैं, या टेलोराइट मीडियम के अंदर उसको ग्रो करके देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की कॉलोनीज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, या फिर आप ब्लड अगर पे उसको ग्रो कर सकते हैं, बीटा इमोलिसिस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अलग अलग बायोकेमिकल या कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करके फिर उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आइडेंटिफिकेशन आता है कल्चरल आइडेंटिफिकेशन, तो माइक्रोस्कोपिक हो गया। दूसरा कल्चरल आइडेंटिफिकेशन। The identification of staphylococci is confirmed by culture and other identification tests, comprises a range of biochemical and enzymatic tests followed by antibiotic sensitivity। तो जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि आपको क्या करना है, उसके अलग अलग बायोकेमिकल टेस्ट करने, एंजाइमेटिक टेस्ट करने। एंजाइमेटिक टेस्ट के अंदर आपका कैटलिस्ट टेस्ट आ गया, ऑक्सीडेटिव टेस्ट आ गया, बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर आपका इम्यूक आ जाएगा। और आपको इसके अलावा एक और टेस्ट करनी है जिसे हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं कि ये किस एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है। ठीक है, तो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप सैंपल को न्यूट्रिएंट अगार पे
ग्रो करे या ब्लड अगर पे ग्रो करे एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। न्यूट्रिएंट अगर पर अगर आपको लार्ज सर्कुलर स्मूथ कॉन्वेक्स एंड ग्लिसरिंग कॉलोनीज मिल रही है विच शोइंग द गोल्डन येलो पिगमेंट्स, तो फिर इसका मतलब ये प्राइमरीली ये हो जाता है कि इट में भी कि ये स्टाफिलोकोकस ऑरियस हो सकता है। ब्लड अगर पर आपको बीटा इमोलिसिस का जोन अगर दिखता है, ठीक है, तो ये जो जोन है ये और कोई स्पीसीज शो नहीं करती, ओके, विच इज नॉट शोन बाय एनी अदर स्पीसीज ऑफ स्टाफिलोकोकस। तो यहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हो ना हो ये स्टाफिलोकोकस ऑरियस ही है, ठीक है। Specimen from heavily contaminated sources such as Omitus species are inoculated onto selective media, which is mannitol salt agar or salt milk agar. These media inhibit growth of gram-negative bacteria but allow the growth of Staphylococcus and certain other gram-positive bacteria. Why we utilize this medium? Mannitol salt agar and the salt milk agar, it contains almost 10 to 15% of the salt concentration and no gram-negative bacteria which can tolerate uh, this amount of salt concentration. This is tolerated only by the Staphylococcus species and some other gram-positive bacteria. Therefore, we utilize some selective media like mannitol salt agar or the salt milk agar. Now, what is prophylaxis and the chemotherapies? Keep your hands clean by washing them thoroughly with the soap and water. Keep cuts and scrapes clean and covered with the bandages until they heal. Do not share personal items such as towels, clothing or cosmetics. ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए? बेंजिल पेनिसिलिन का यूज कर सकते हैं, फ्लॉक्सासिलिन का यूज कर सकते हैं या फिर वैंकोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। ये कीमोथेरेपी के अंदर आप इसके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। So this is about the Staphylococcus aureus. Thank you.